ऑपरेटर्स रह गए थे. ओके, सो दोज टू ऑपरेटर्स वी विल बी लाइक डिस्कसिंग राइट नाउ. So next one is membership operator. Okay. So what do you mean by membership operator? So suppose if we have taken any list or set or tuple. So suppose if I have taken any list. So suppose I have taken 5, 6, 7, and then I have taken something like Rohan, Mohan. Okay, and we have taken it as a variable as s. हम लोगों ने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया लिस्ट के फॉर्म में, और इसमें ये सारे एलिमेंट को रखा. ओके, लाइक पैरेलली आई विल बी ट्रांसलेटिंग इन इंग्लिश आल्सो. ओके, नाउ इफ आई विल बी आस्किंग यू कि इज रोहन इज प्रेजेंट इन दिस वेरिएबल और नॉट. ओके, in membership operator basically two operators are there, in and not in. membership operator में क्या होता है, दो ऑपरेटर होते हैं, in और not in. मतलब क्या बोला जाता है कि अगर आपका कोई लिस्ट है, टपल है या सेट है, जो भी एलिमेंट आपके हैं, उसमें वो पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो मैंने पूछा कि रोहन एस में है. इफ आई आस्क यू लाइक दैट, रोहन in I'm using in, and I'm using where you are asking for s. So if Rohan is present in s, our output will be what? True. If Rohan is not present in s, then our output will be false. Understood? Now and its sequence will be, इसका क्या होता है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग होता है, प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो किया जाता है. लाइक आपने यहाँ पे ROHAN लिखा है, सो R विल बी कैपिटल. इफ आई विल आस्क ROHAN, रोहन इज रोहन इन एस, तो ये बोलेगा फॉल्स. व्हाई? बिकॉज ये कैपिटल आर नहीं. Okay, it is a small r. So what will be using, in and not in using will be used in membership operator exactly like this. Okay, अगर आपको बोला जाए कि ये सीक्वेंस में प्रेजेंट है कि नहीं है, तो आप बोलोगे लाइक अगर वो प्रेजेंट रहेगा तो ट्रू दे देगा. इफ इट इज नॉट प्रेजेंट देन इट विल गिव अस आउटपुट एज फॉल्स. Okay, we will be discussing in code of that. Okay, next is what? Next is identity operator. Okay, next one is identity operator. So basically you people might be knowing that if we need to find out any variable address, अगर आपको किसी वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट करना रहता है तो आप क्या यूज करते हो, id of s. If we people are using like x equal to string of 5, okay, so its id will be different. Okay, so if these whatever the things that we are finding, जो भी चीज हम लोग अभी यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो अगर एक का आईडी दूसरे के आईडी के इक्वल है, तो आपका आउटपुट क्या देगा, ट्रू देगा. अगर वो आईडी सेम नहीं है तो आपका आउटपुट क्या देगा, फॉल्स देगा. तो सपोज इफ आई हैव रिटन x इक्वल टू 7, ओके, आई हैव फाइंड इट आउट x id of x, so its id will be something something. Okay, I have taken y equal to 7, its id will be also be same. So if id of x is equal to id of y, then only we will get as true. Else if it is not equal, then we will get as output as false. Okay, so it will be using as is and is not. Okay, that belongs to identity operator. एग्जाम्पल से देखते हैं, चीजों को समझते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा चीजें, ये चीजें. ठीक है, आते हैं वापस हम लोग कोड पे एंड देखते हैं कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो सी membership operator right now we are dealing with. Here you can see I have taken one string that is hello world. Okay, and right now I am what I am asking, if h in x, x में x जो वेरिएबल है उसमें h बिलोंग करता है क्या, तो आउटपुट विल बी व्हाट, ट्रू. इफ आई हैव आस्क्ड यू g नॉट इन x, तो ये भी ट्रू देगा बिकॉज g तो इसमें नहीं है. अब राइट नाउ आई हैव व्हाट आई हैव आस्क्ड, s जो है इसमें बिलोंग कर रहा है क्या, s इन x, सो नो, इट्स आउटपुट विल बी फॉल्स. इफ आई हैव आस्क्ड s नॉट इन x, तो s इसमें नहीं है ना, तो इट्स आउटपुट विल बी ट्रू. इफ आई हैव आस्क्ड यू, if I have asked you something like that, कि
if I am taking one string, okay, and then I am asking you x, I have written here, hello guys, welcome to Python class. Okay, this one I have taken as a string. Okay, now what I am asking you, कि print, okay, print को बाहर, print what will be its output? True. Can anyone tell? True. Why? Because WEL ये क्या है यहाँ पे, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, सो इट्स आउटपुट विल बी ट्रू. ओके, नाउ नाउ अभी मैंने क्या कर दिया, नाउ False. false. Now its output will be false. So what we need to keep in mind, that if we are asking for any single character, so its output will be true. If you are keeping multiple character or multiple words, so its sequence will be same. If we are writing, suppose hello, okay, then its output will be true. और if we are taking in a sequence, अगर ये sequence में है, if we are writing hell also, no, that will be true. But अगर हम लोग इसको एच एल लिख देंगे, एच एल लिख देंगे, तो देखिए ये सीक्वेंस में नहीं है ना, सो इट्स आउटपुट विल बी फॉल्स. Okay, so what I mean to say that if you are asking for any single character in any variable, तो वो सिंगल कैरेक्टर अगर एग्जिस्ट करता है, देन आउटपुट विल बी ट्रू. ओके, इफ वी आर आस्किंग फॉर मल्टीपल कैरेक्टर, देन इन दैट पार्ट ऑफ टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो भी कैरेक्टर है वो सीक्वेंस में होने चाहिए. सो इफ आई एम आस्किंग फॉर हेलो, तो ये सीक्वेंस में है ना, ये सीक्वेंस में है, तो इसका आउटपुट ट्रू होगा. इफ वी हैव रिटन लाइक एच ओ, तो ये एच पहले है एंड ओ बाद में है, सो इट्स आउटपुट विल बी फॉल्स. ऑल्दो दिस कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग, बट ये सीक्वेंस में नहीं है. ओके, सो इट्स आउटपुट विल बी फॉल्स. आई होप यू पीपल अंडरस्टूड. ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट I have asked for. This thing we you need to understand very nicely. So see, what I have taken. I have taken one string, hello world, and another one I have taken as dictionary. Dictionary you might be knowing, no? Key and value. Here key is one, okay, and value is what? A. You might have seen one and A. Now, if I am asking H in X, X में H है, तो its output will be what? True. H तो है ना. If I am asking hello not in X, तो hello तो इसमें नहीं है ना, because it is capital letter. Not in X, तो its output will also be true. Okay. Now I have asked print one in Y, तो Y में one तो है ना, तो one है. Now one lesson that you need to keep in mind. Right now I'm asking what? A in Y. So its output will be false. Okay. So you might have remembered डिक्शनरी में if आपको कोई आइटम चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है? What you need to keep in mind? डिक्शनरी में आपको उसका की लिखना पड़ता है, तभी आपको क्या मिलता है? वैल्यू मिलता है. Here also the scenario is same. वन तो एग्जिस्ट करता है वाई में, ए भी एग्जिस्ट करता है, बट ए का कोई भी मतलब नहीं बनता है वन के अलावा. ठीक है, वो नहीं बोलते हैं कि एक चीज दूसरे से इंटरलिंक्ड रहता है. अगर ये दोनों इंटरलिंक्ड है, तो इन दोनों का इंपॉर्टेंस है. अगर ये इससे इंटरलिंक नहीं है, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट वैल्यू का कोई मतलब नहीं बनता है अगर वो की के साथ ना हो. ठीक है, तो वन तो बिलोंग करता है वाई में, बट ए नहीं बिलोंग करता है, बिकॉज ए जो है वन से इंटरलिंक्ड. ओके, सो इफ एनीवन विल आस्क यू दैट वैल्यूज
अगर उसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो वैल्यूज के नाम से हम लोग पता कर लेंगे क्या, तो नो, इट्स आउटपुट विल बी फॉल्स ओनली। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? समझ में Yes, sir. आया? Yes, sir. ओके। Yes. Next one is identity operator. So identity operator, I have said you that identity operator कैसे compare करता है चीजों को, उसके ID के point of view से। So see, if you have seen anywhere, like if I have written x equal to 7 and y equal to 7, if I have written x is y, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे वैल्यू सेम है इसलिए यहाँ पे इसका वैल्यू ट्रू आया। नो नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इसका मतलब ये हुआ कि आईडी ऑफ एक्स एंड आईडी ऑफ वाई, ये दोनों इक्वल है, दैट्स व्हाई इट्स आउटपुट इज ट्रू। सो नेवर एवर रिमेंबर लाइक दैट कि ये वैल्यू सेम है इसके लिए इसका वैल्यू ट्रू आया। नो, first of all what they have done, they have changed its like they have changed this value into its address, and after that they have compared those address, and then only it's given me output as true। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 लिया, यहाँ पे भी 5 लिया, तो what we have taken, x1 is y1, so its output will give me the true। So it is not like that कि its value is same। what is same? Its address of id of x1 and id of y1 is same, that's why its address, that's why it is giving me output as true। okay, so देखिए यहाँ पे मैंने id of x1 को चेक किया, तो देखिए इसका एड्रेस सेम, और id of y1 को चेक किया तो इसका एड्रेस सेम। ठीक है, नेक्स्ट वन व्हाट वी हैव डन, x3 इज स्ट्रिंग ऑफ 1 एंड y3 इज नॉर्मल 1। सो यू सी x3 इज y3, नहीं ये तो नहीं है, तो आपको वैल्यू देख के नहीं करना है। नो, we need not to see after seeing those values, no, address देख के id of x3 it is like that, id of y3 it is like this, so id is not same, that's why it has given me output as false। understood? ये चीजें समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, सो इज एंड सेम इज नॉट का क्या मतलब हुआ कि x is 8 y is 5, if I have trying to print x is not y, तो हाँ सही बात है ना, इसका आईडी डिफरेंट है, इसका आईडी डिफरेंट है, दैट्स व्हाई इट्स गिवन मी आउटपुट एज ट्रू। अंडरस्टूड? वेयर एवर यू विल फाइंड डिफिकल्टी यू जस्ट ट्राई टू आस्क मी। ओके, नाउ नाउ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, I wanted to ask from you people, x3 is 1 2 3, okay, id of x3, and y3 is 1 2 3, id of y3, ये दोनों ये आइटम तो सेम ही है यार, 1 2 3 1 2 3, इस ये फॉल्स क्यों आ रहा है? So values multiples है उनकी, व्हाट? different values। वैसे नहीं बोलते, डिफरेंट एड्रेस होगा। वैल्यूज मत बोलना, व्हाट यू नीड टू से, x3 का आईडी, x3 का आईडी ये है, एंड y3 का आईडी, y3 का आईडी ये है, सो दीज टू आईडी इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू इज फॉल्स। देखो यहाँ पे कहाँ पे गया, 22050686838339 देख पा रहे हो, 391 यहाँ पे देखो, एंड 383 डिफरेंट है ना, Yes। that's why it has given me output as false। okay, understood? Sir, ये आपको भी क्यों पता आया? नहीं है कि, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर डिफरेंट क्यों आया? ये कौन पूछ रहा है? अरे ये डिफरेंट, ये पाइथन अपने आप को ये सॉल्व कराता है, नो वन इज नोइंग, ओके, दैट वेयर पाइथन इज स्टोरिंग दिस फाइल। सो डिफरेंट इसलिए आया कि ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है इसका एड्रेस जो है पाइथन ने यहाँ पे डाला, और ये जो लिस्ट है y3 इसका पाइथन ने एड्रेस यहाँ पे डाला। ओके, दैट्स वाई इसका एड्रेस डिफरेंट आ गया। अगर पाइथन इसको भी यहीं पे डालता इंटीजर की तरह, मैंने आपको क्या बताया था आईडी डील करने से के समय में, कि सिर्फ इंटीजर में ही जो छोटे छोटे इंटीजर होते हैं उसका ही आईडी सेम हो जाता है, रेस्ट फॉर बिगर और कॉम्प्लेक्स नंबर ये सारी चीजों में आईडी आपका डिफरेंट होता है। ओके, एंड नो वन इज नोइंग दैट व्हाई इट्स आईडी इज कमिंग लाइक दैट, दे डिपेंड्स ऑन वेयर पाइथन वांट टू स्टोर इट। ओके, यस सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी बेसिकली डील होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें भी आप समझ गए किस तरीके से होती हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये 5 है, ये 5 है, इसका आईडी सेम है। ठीक है, बट आई हैव आस्क्ड यू x1 इज नॉट y1, ओके, x1 इज
नॉट y1, ये तो गलत बात है ना, x1 y1 के इक्वल में है ना, so that's why its output is coming as false. Now x2 is hello and y2 is also hello. x2 is y2, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आईडी आया ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताइए। ये दोनों आईडी सेम ऑफ, आईडी। एग्जैक्टली आईडी ऑफ x2 एंड आईडी ऑफ y2, इसका एड्रेस सेम आया होगा, इसलिए इसका आउटपुट ट्रू आ गया। अंडरस्टूड। 123 एंड 123, इसका आईडी और इसका आईडी डिफरेंट आया। देखो आप वैल्यू पे मत जाओ, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग यू, आप वैल्यू पे मत जाओ, सिर्फ आईडी इसके एड्रेस पे जाओ। इफ एड्रेस सेम है तो आपका ये आउटपुट ट्रू दे देगा, इफ एड्रेस इज नॉट सेम देन इट्स आउटपुट विल बी फॉल्स। अंडरस्टूड। यस सर। ओके, तो या ऑपरेटर्स में कोई डाउट आपको, ऑपरेटर्स हम लोगों ने देख लिया। सर ये x3 123 था, y3 भी 123 है, हम्म, तो फॉल्स कैसे? अरे यही चीज तो मैं बता रहा हूँ आपको, वैल्यू इस वाले वैल्यू पे मत जाओ आप, इस वाले वैल्यू पे मत जाओ, मैंने क्या बताया आपको अभी कि आईडी x3 का चेक करो, देखो 123 है ना, वैल्यू डोंट गो विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू, ये क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी या आइडेंटिटी ऑपरेटर मीन्स व्हाट, इट्स आईडी विल बी चेक्ड, आईडी ऑफ x3, id of y3, if id of x3 is equal to id of y3 then only its output will be true, if id of x3 is not equal to id of y3 then its output will be false. So see id of x3 मैंने चेक किया, इसका देखिए 123 id इसका ये आया, देखिए 22050683, इस तरीके से आया। id of y3 मैंने चेक किया 22050683, ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए 683 83, यहाँ पे क्या है 91, so that's why he has given me output as false. ओके, Understood? या Don't go with respect to this value, just go with respect to its address. ओके। Understood? Okay, now we'll be seeing, आज से हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक सा कोड स्टार्ट करते हैं, ये भी बहुत बेसिक है, ठीक है। नाउ वी पीपल आर गोइंग टू प्रिंट वन ऑफ द थिंग दैट basic of programmer used to do, print a star pattern. Okay, so in printing a star pattern what you need to keep in mind, this backward slash n means new line, you can write anywhere, आप लिख लेना कहीं पे नोट्स में, बैकवर्ड स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, ओके, एंड बैकवर्ड स्लैश टी का मतलब होता है टैब, जैसे हम लोग टैब प्रेस करते हैं ना एक टैब, वही आप शॉर्टकट उसका है स्लैश टी। ओके, so these two things you need to keep in mind while using print star pattern. Okay, समझ में आया, ये न्यू लाइन है, और ये न्यू लाइन का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने x लिखा एंड y लिखा तो ये आपको आउटपुट क्या दे देगा, x और y, बट मैं चाहता हूँ x ऊपर आ जाए और y नीचे आ जाए, तो मैं क्या लिखूंगा पता है, x बैकवर्ड स्लैश n एंड y, इसका मतलब क्या हो जाएगा x y। अंडरस्टूड, ये इसको नीचे लिख देगा। अंडरस्टूड। चलिए, तो अब हम Yes. लोग इसको देखते हैं चीजों को, देखिए, सो इफ वी नीड टू प्रिंट दिस पैटर्न, ये स्टार पैटर्न प्रिंट करना, अभी हम लोग इसको लूप से भी कर सकते हैं, व्हाइल लूप फॉर लूप से, अभी हम लोग सिंपल पैटर्न देख रहे हैं, सिंपल। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर आपको ये पैटर्न प्रिंट करना है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले लाइन में एक स्टार, फिर दो स्टार, तीन स्टार, चार स्टार एंड पांच स्टार, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये सिंपली आपको किस में रखना है, स्ट्रिंग में रखना है। ओके, सो पहले वाले में क्या हुआ, एक स्टार, तो पहले आपने एक स्टार दे दिया, उसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, नीचे वाले लाइन में जाना है, सिंपली यू नीड टू कीप स्लैश एन कर दिया, उसके बाद नीचे वाले लाइन में व्हाट यू नीड टू कीप, दो स्टार, अब दो स्टार हो गया, अब इसके आगे कुछ भी नहीं देना है, तो फिर क्या करना है, स्लैश एन, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, तीन स्टार आ गया, फिर से आपको स्लैश एन, फिर एक दो तीन चार, फिर स्लैश एन। अंडरस्टूड, तो जितना आपको करना है उतना आपने कर दिया, एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, चार स्टार, पांच स्टार, सो इफ यू विल प्रिंट इट्स आउटपुट विल बी, आई होप यू अंडरस्टूड।
आपको पता है ना, स्ट्रिंग में आप Yes, कुछ sir. भी रखोगे, स्ट्रिंग में आप कुछ भी रखोगे वो एग्जैक्टली प्रिंट आउट हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड स्लैश एन. अंडरस्टूड? ओके. So next one is like sir. if you want to print your pattern like this, ऐसे पहाड़ की तरह, ऐसे आप करना चाहते हो प्रिंट, ठीक है, इस तरीके से. तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपली आपको क्या ध्यान देना है, कितना जाना है आपको, कितना पॉइंट तक जाना है, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, कितने पॉइंट तक जाना है. तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मतलब स्टार की जगह पे कुछ भी रख सकते हो ना, नो डाउट. तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क रख दिया. ओके. तो एक पहले वाले में एक स्लैश एन, फिर दूसरे वाले में दो स्लैश एन, फिर तीसरे वाले में तीन स्लैश एन, फिर फोर्थ, इन फोर्थ स्लैश एन, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, नीचे भी आना है आपको. तो सेम 3 2 1, देखिए, फर्स्ट 2 3 4 3 2 1. समझ में आ गया ये चीजें? एक भी पीपल को, लाइक Yes, sir. किसी को भी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीजें समझ में नहीं आ रही, समझ में आ गई ना? Yes, sir. ओके. सो दैट्स वी पीपल हैव डिस्कस अबाउट फाइव भी हम लोगों ने रख लिया, तो इसको अकॉर्डिंगली चीजें कर दी. ठीक है. अब मुझे प्रिंट करना है बेसिकली ये पैटर्न. ये क्या है, वो जेट जो नहीं होता है, जो आर्मी वगैरह में यूज होते हैं, मतलब वो वाले. तो मुझे ये पैटर्न प्रिंट करना है. ठीक है. कैसा, ऐसे की तरफ, इस तरीके से नहीं रहता है बेसिकली, ऐसे वाला. तो वो पैटर्न यहाँ पे प्रिंट करना है. देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. व्हाट आई हैव सेड यू, स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन एंड स्लैश टी मीन्स वन टैब. ठीक है. सो व्हाट वी नीड टू प्रिंट, देखिए आपको ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है इस तरीके से. तो व्हाट आई हैव यूज्ड, प्रिंट, ध्यान से देखिएगा, प्रिंट स्लैश टी, मतलब क्या, ऑलरेडी एक स्पेस, एक टैब स्पेस ले लिया, एंड प्लस एक टैब में आप स्टार कर दो. तो पहले वाले में क्या होगा, एक स्टार और एक टैब स्पेस. तो ये एक टैब स्पेस ले लिया. फर्स्ट लाइन यू अंडरस्टूड और नॉट? फर्स्ट लाइन यू अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. Yes, sir. अब इसी का लास्ट लाइन पे आ जाओ. इसी का लास्ट लाइन आप रिलेट कर पाओगे. लास्ट लाइन कैसा है, ऐसा है, ये वाला लास्ट लाइन. ठीक है. स्लैश टी प्लस स्टार, तो ये वाला लास्ट लाइन. ओके. सीक्वेंस में समझेंगे तो आप समझ पाओगे. सेकंड सेकंड देखो, सेकंड लाइन, स्लैश टी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, मतलब 2 बार टैब स्पेस. ये एक बार टैब स्पेस यहाँ पे और एक बार टैब स्पेस यहाँ पे, दैट्स वाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया. और इसको कितने से ऐड कर दिया गया, ये स्टार को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, मतलब 3 स्टार. समझ में आया? तो ये देखिए 3 स्टार. दिस लाइन यू अंडरस्टूड और नॉट? सबसे पहले टैब को 2 से मल्टीप्लाई किया गया और स्टार को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, ये 3 स्टार आ गए. वही सेम चीज देखिए यहाँ पे, स्लैश टी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, स्टार को 3 से, तो यही ये पैटर्न आ गया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस लाइन. ये लाइन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन इज देखिए, स्टार को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, एंड इसको 5 से, तो 5 स्टार है, और ये 3 समझ ही गए, एक टैब, 2 टैब, 3 टैब, थर्ड. ओके. एंड हेयर ऑल्सो इट हैज डन द सेम. एंड लास्टली फॉर लास्ट पॉइंट, दैट इज विल बी इट्स टिप पॉइंट, इसको स्लैश टी इंटू 4 एंड स्टार इंटू 7. ओके. एक पिन पॉइंट आपका आगे बनना चाहिए ना, दैट्स वाई यहाँ पे ये 3 सिमिलर थे, 1 2 3 एंड ये वाला आगे का टिप पॉइंट था. अंडरस्टूड? Yes, sir. या. Yes, sir. तो दिस इज द वे यू विल प्रिंट इट. अब देखो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर दिया, अब मैंने इसको रिवर्स कर दिया. नाउ यू कैन सी सेम ही है ना, जस्ट सी, ये सेम ही है ना. पहले वाले में क्या किया गया, स्लैश टी को, स्लैश टी मतलब टैब को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया. क्यों? क्योंकि टैब यहाँ से स्टार्ट होता है ना,
यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पे इसको रख दिया गया, ठीक है। दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 3 स्टार, तीसरे वाले में स्लैश टी कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया गया एंड 5 स्टार 5 स्टार। देख पा रहे हो यहाँ पे ये 5 स्टार, एक टैब का स्पेस लिया गया, यहाँ पे 3 टैब का स्पेस लिया गया, यहाँ पे 2 टैब का स्पेस लिया गया, यहाँ पे 1 टैब का स्पेस लिया गया एंड यहाँ पे कोई भी टैब का स्पेस नहीं लिया गया। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now next one, what we need to do, we need to print this pattern. Okay, ये वाला पैटर्न आपको प्रिंट करना है, काइट बनाना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल देखो, काइट आपको, यू नीड टू प्रिपेयर काइट। सो सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, इन फर्स्ट लाइन आपको इतना स्पेस लेना था और स्लैश एन लेना था। ओके, तो यहाँ पे आप आ गए एंड स्लैश एन ले लिया। उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट करना है स्टार्टिंग में और एक टैब स्पेस लेना है। ये टैब स्पेस आपने लिया एंड फिर से एक स्टार प्रिंट करना है, तो फिर से स्टार। Okay, and after that in third line what you need to do, slash n, and after that you have taken this much space and you have printed up. Understood? सर एक क्वेश्चन तो इसमें जो स्पेस लगाया हुआ है तो स्पेस की जगह पे Manually, टैब नहीं लगा manually, सकते सर वही? space हम लोगों ने, we people have used this space as manual, manually हम लोगों ने स्पेस लगाया है, Okay. ये स्पेस बार दबाकर। Okay. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? तो ये सारी चीजों को आप इस तरीके से डील कर लेते हो। देखो स्टार जैसा भी आपको पैटर्न प्रिंट करना है, यू कैन प्रिंट इट विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, अंडरस्टूड ईच एंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Now, up to now, what we people have seen. Okay. Up to now, we people have seen that we are writing our variable in the beginning. हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल पहले ही लिख देते थे। याद है, हम लोग वेरिएबल को पहले लिख दे रहे हैं, इसका वैल्यू भी सबसे पहले लिख दे रहे हैं इस तरीके से। ओके, नाउ व्हाट वी वांटेड कि वी वांट आवर वैल्यू टू बी इंटर्ड बाय यूजर। ओके, मुझे मुझे पहले से पता ना हो कि मुझे क्या वैल्यू मिलेगा। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू आस्क फ्रॉम यूजर। ओके, so that's why we need to use input. Okay, so up to now whatever the things that we people were using, that was what variable that to be assigned before। मतलब आप क्या कर रहे थे, वेरिएबल को पहले ही लिख दे रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को यूजर से पूछ के और उसका आंसर जो होगा वो बाद में लिखेंगे। ओके, व्हाट वी नीड टू डू, सिंपली जस्ट सी। अभी क्या कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे, a इक्वल टू 45 लिखा, मैंने प्रिंट कर दिया a को। आपको पता है कि a का वैल्यू कितना है, 45 है। बट अब कोई केस आया मेरे पास कि वी डोंट नो विच वैल्यू वी वांटेड टू इंसर्ट। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव डन int means what, integer। input means what, we are asking from user, or in input we are writing enter a number। Okay, and simply what we are printing we are printing what, b। तो अब क्या होगा, अब आपको क्या पता है, अब आपको नहीं पता है कि कौन सा वैल्यू यहाँ पे आने वाला है। सी, enter a number, any value we can write any value। so see, पहले क्या होता था, पहले आप वेरिएबल को लिख देते थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर आस्किंग फ्रॉम यूजर। ओके, अंडरस्टूड? समझ Yes. में आया आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ी सी चीजें और देखते हैं, देन रैप अप करते हैं बिकॉज टाइम हो गया। सी, वी आर आस्किंग फ्रॉम इनपुट फ्रॉम यूजर, इनपुट इंटर योर नेम। ओके, एंड वी आर नॉट गिविंग एनी नेम। ओके, एंड वी आर जस्ट सिंपली प्रिंटिंग hello and that x, whatever the name that you will print here, whatever the name that you will give. Now I am just writing my name. See, hello Gulson. Understood? These are basic only, you might be knowing. Okay, but I'll just dictate you. See, understood? Now I am asking password from user. Okay, so I am just saying password, input enter your password, and I am just printing hello
whatever the name you wanted to give. Hello Jan, sit, tell me your phone password, and in password variable that we have taken, we have kept here. Okay, string में we can keep anything. Okay, and just we are simply asking from user. Okay, so I have said 5879 your password. So hello Jan, Sid, tell me your password. He has said me the password 5879. Understood? We are asking from user, like input, enter your maths marks. Okay, and just printing Pankaj your math marks is, so whatever the marks that Pankaj will say, that marks only it will represent. Okay, and type you already know type of that variable. यहां तक आपको समझ में आया? बेसिक Yes, बेसिक. sir. ओके, नेक्स्ट लाइक हम लोग कल पढ़ेंगे कोडिंग के बारे में, मतलब यहाँ से कोडिंग स्टार्ट होगा. राइट अ प्रोग्राम टू इंटर टू नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट एडिशन ऑफ देम. तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे सारी चीजों को. ठीक है, तो बेसिकली आज कवर अप हो जाता, तो स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, दैट्स वाई. तो समझ में आ गया यार?